Bismillahirrahmanirrahim. Dear scholars, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine enough with the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. How was your day today? Can you listen to me? Yes, sir. Okay, thank you. In previous class, we have learned about mixed methods research and the extent up to which we have learned, I would like to just have a look on it. We've gone through three types of research designs: qualitative, quantitative, and mixed method. And you know, in these three tables, we've gone through in depth all the different components like purpose, group study, variable, data collection, forms of data, blah, blah. Finally, we have done the pragmatism and other philosophies, reasoning for mixing, how methods can be mixed, planning for mixing, and notations to describe mixed method designs. And further, I was talking about the sequential explanatory design and characteristics of the sequential explanatory design. And also I shared a script writing process, how the purpose statement and the script can be write. Today, we are supposed to discuss the concurrent triangulation design. Obaidur Rahman, you are just joining. Obaid attendance. Concurrent triangulation design में let's see quant data and results, यानी quantitative data और results, और with qualitative data and results को हम mix up करते हैं. इस पे आप लोगों ने एक क्विज भी दिया है 9 marks का. So purpose of quiz was that you can familiar with the all these methodologies. Concurrent triangulation design characteristics जो हैं वो हम देखते हैं क्या क्या हैं. Collecting both quantitative and qualitative data, collecting these data at the same time in the research procedure, analyzing the quantitative and qualitative data separately, comparing or combining the results of quantitative and qualitative analysis. इसकी एग्जांपल अगर आप चाहें तो ये है कि collect survey data quantitative and collect individual interviews are qualitative, and then compare the results. This will be the triangulation. When it is used, when triangulation design is used, when you want to combine the advantages of quantitative with qualitative, then triangulation design is needed to be used.
you know, in quantitative advantages आप trends, large numbers और generalization open on the large population होती है, और whereas in qualitative you go for detail and small number in depth जाते हैं. When you want to validate your quantitative findings with qualitative data, then we go for triangulation. When you want to expand your quantitative findings with some open-ended qualitative data, survey with close and open-ended data. तो सर्वे आप करते हैं, उसमें क्वेश्चनर आप देते हैं, क्लोज एंडेड होता है जो एक सर्टेन रेटिंग स्केल पे होता है. लेकिन अगर उसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दें कि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी मर्जी से वो देख सकें, कुछ लिख सकें, तो ये ट्रायंगुलेशन बन जाती है. कंकरेंट एम्बेडेड डिज़ाइन, क्वाल, क्वांटिटेटिव, क्वान, क्वालिटेटिव. तो इन जो साइंस हैं इनसे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं. सो लेट्स सी हियर what design is coined through qual quan and quan qual. Quan pre-test data and results. The quantitative setup होगा, data pre-test होगा और उसके रिजल्ट होंगे. फिर उसमें कोई इंटरवेंशन होगी, इंटरवेंशन जो है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस के थ्रू होगी, और फिर आप क्वांटिटेटिव पोस्ट टेस्ट डाटा रिजल्ट्स की तरफ चले जाएंगे और इस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट कर देंगे. Let's discuss the characteristics of concurrent embedded design. One data collection phase during which both quantitative and qualitative data are collected. One is determined to be the primary method. The primary method guides the project, and the secondary provides a supporting role in the procedures. I am talking with Ubaidur Rahman. उबैद, आप अपना अनम्यूट करें. यस सर. हमने लास्ट क्लास में यही कर रहे थे ना डिस्कस. जी सर. हाँ, चूंकि मैं 2 क्लासेस लेता हूँ मिनहाज में ही, तो कहीं मैं गलती से उनका ना शुरू हो गया हूँ. क्योंकि सर नहीं, ये नहीं था. तो हमने क्या किया था सर? हमने केस स्टडी को स्टडी किया था. केस स्टडी सर हमने 5 क्वालिटेटिव अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था. 5 क्वालिटेटिव अप्रोचेस. सर जी सर, 5 अप्रोचेस की बात थी सर. जस्ट रुकें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकें. मुझे वो लगा कि ये तो मैंने कहीं और किया हुआ है. तो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. वी आर वफा सुल्तान, आप जैसे सियाने लोग भी नहीं बता रहे कि शायद हम कहीं. सर वो असल में रिवाइज का थोड़ा सा हम अभी आप क्विज की बात कर रहे थे, तो वो क्विज जो हमने 5 अप्रोचेस वाली दी है. नहीं, मैं अभी मैं लेक्चर की बात करूंगा कि लास्ट टाइम लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. मिक्स मेथड सर्च नहीं पढ़ी थी? नहीं सर, वो सर आपने कहा था आज मैं पढ़ाऊंगा. आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बोलो. एक्सक्यूज मी, लेट मी क्लियर दैट कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट क्या किया था. जरा जल्दी से आप कोई अपने हैंडआउट्स और चीजें देखें और बताएं मुझे. सर हमने 5 अप्रोचेस को सम अप करके पढ़ा था. ओके. और नेक्स्ट के लिए मैंने क्या कहा था कि क्या करेंगे? सर मिक्स्ड अप्रोचेस आई थिंक. थिंक पे ना जाए. हाँ कर लगा बस. मिक्स मेथड का कहा था सर ने. मैं ये प्लान में से देख लेता हूँ, आपको नहीं अंदाजा हो रहा.
जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें देखते हैं। अगर तो मिक्स मेथड का कहा था तो फिर यही है मिक्स मेथड, फिर ठीक हम जा रहे हैं। दिस इज द कोर्स आउटलाइन। मम्मा जी बेटे। मम्मा मुझे ना ऐसे करना शाम को भी दूध दे देना ताकि ताकि मैं कल का भी दूध हो। ये सारे बेटे लोग आपने कल रोजा नहीं रखना। सारे लोग सुन रहे हैं कि ये अभी रोजे में दूध मांग रहे हैं। 2 टाइम दूध पी इन डेप्थ एंड इन ओ भाई ड्राओ नहीं, फूंके मार मार के इसके अंदर। द स्टूडेंट्स फोकस ग्रुप कोर्स आउटलाइन यार क्या प्रॉब्लम है। सिमेंटिक कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हो गए और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू रिसर्च हुआ था, कर लिया हमने। सिलेक्शन, टेक्स्ट एंड प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन हमने बात की। कॉग्निटिव बेसिस पैराडाइम पढ़ी है हमने? नो सर अभी नहीं पढ़ी। नो सर। रिसर्च पैराडाइम्स नहीं पढ़ी हमने? नो सर। ओके 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 ओके। अच्छा तो एक मिनट मुझे देखने, अगर इसमें मिक्स है तो मैं ये करवा दूं। कॉन्सेप्ट, रिसर्च पैराडाइम, स्टाइल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, पैराडाइम अप्रोच। ठीक है जी, पैराडाइम ही करते हैं, मिक्स हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, तब तक आप, मैंने सबके माइक ऑन किए हुए हैं, कि बात करनी है तो आप करें। हेलो सर मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी, नाम बोले ना, पहले नाम बोला करें। सर आयशा जमान। जी आयशा जमान। सर आप लेक्चर्स की वीडियो से हम स्क्रीनशॉट्स लेके पढ़ते हैं, वो स्क्रीनशॉट्स आगे पीछे हो जाते हैं। आप पहले पीडीएफ करते थे, अब आप पीडीएफ नहीं कर रहे, तो काइंडली वो भी कर दिया करें। स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं, वो वीडियो नहीं रन करती? सर उसके बाद तो पढ़ने के लिए हम स्क्रीनशॉट्स यूज करते हैं ना, याद करने के लिए। चलो बाद में कर लिया करेंगे ना। आपको मैंने ये भेज दिया पीडीएफ, तो वीडियो कौन देखेगा? और यूनिवर्सिटी ने मस्ट कहा हुआ है कि जी आपने ये जरूर करना है, वीडियो अपलोड करनी है। वहाँ खाना बना हुआ है, वो फिर हमें पूछते हैं। हाँ जी ठीक है सर। हाँ, तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये जरूर करूंगा। जी थैंक यू सर। पैराडाइम्स, और बस इतनी ही बात थी। हेलो एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नेक्स्ट जो है वीकेंड ऑफ है, तो असाइनमेंट वगैरह कोई मिलेगी? आप लोग बताएं क्या कहते हो? रहने दे सर, रहने दे, इस ईद है तो। सर रहने दे सर, रहने दे। आजकल ताकतें भी चल रही हैं, टाइम नहीं मिलता फिरने का। अच्छा, क्या ईद की शॉपिंग करनी है? सर पेपर की तैयारी कर लेंगे। नहीं करते सर, लेकिन कौन से आराम पेपर? फरमा लेंगे। आराम फरमा लेंगे, सीधी बात करो ना, आराम फरमा लेंगे। चले, ठीक है ठीक है ठीक। अगर आप आराम फरमाना चाहते हैं तो फिर ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा चलें जी, हम पढ़ते हैं रिसर्च डिज़ाइन, उसको हम फिर अभी छोड़ देते हैं। पढ़ना वो है हमने मिक्स मेथड, लेकिन अभी उसका आज बारी नहीं है, तो हम पैराडाइम की तरफ आते हैं। डू यू नो द वर्ड पैराडाइम? आप फेमिलियर हैं इससे? व्हाट डू यू मीन बाय पैराडाइम?
ये लफ्ज पैराडाइम है या पैराडिगम है? लेट मी शेयर विद यू, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। हम देखते हैं कि पैराडाइम क्या है। एक्चुअली वी नो कि रिसर्च is a process where researcher poses a question and the researcher collects data to answer the question and then researcher presents an answer to the question। ये तीन काम एक साथ में रिसर्चर खुद कर रहा होता है। जब ये तीनों काम कंप्लीट हो तो हम कहते हैं रिसर्च हुई है। नंबर 1 पे क्या है कि रिसर्चर एक क्वेश्चन पोज करता है, फिर उस क्वेश्चन के लिए वो ऑब्जर्वेशन करता है, डाटा इकट्ठा करता है और उस क्वेश्चन को आंसर देता है और उस आंसर को वो लोगों के सामने डिसेमिनेट करता है। तो दिस इज known as research. So the reflection of the research we know from following processes। the research process क्या है, उसका लिटरेचर व्यू क्या है और पर्पस स्टेटमेंट क्या है। इन तीनों टर्मिनोलॉजी से आप बड़े डीपली फेमिलियर हैं। तो ये तीन कॉलम में आप देखें कि प्रोसेस क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू किस तरह का होगा, तो पर्पस स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं ये लिटरेचर व्यू से फ्रॉम पैराडाइम से हम हाईलाइट करते हैं। पैराडाइम एक्चुअली है कि किस तरह की रिसर्च है, आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड है। क्वालिटेटिव रिसर्च को हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच, क्वालिटेटिव को हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच और मिक्स मेथड को हम कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, ये तीनों फिलोसफीज हैं, इन तीनों को हम पैराडाइम्स कहते हैं। तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि रिसर्च के अंदर इन तीनों फिलोसफीज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव और पर्पस स्टेटमेंट जो है, मेथड ऑफ रिसर्च जो है वो हमें लिटरेचर व्यू से मिलता है और ये पैराडाइम बताएगी कि किस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव होंगे और मेथड क्या होगा। देन वी गो फॉर मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं? लिटरेचर व्यू से, और हाइपोथेसिस हम पर्पस स्टेटमेंट से बनाते हैं। एक्चुअली लिटरेचर व्यू हम करते ही इसीलिए हैं कि जो मैंने रिसर्च टॉपिक लिया है उससे मुतल्लिक इससे पहले वाले लोगों ने जो रिसर्च की है वो क्या कहते हैं। ठीक, तो फ्रॉम द लिटरेचर व्यू वी आइडेंटिफाई डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड वी कंस्ट्रक्ट आवर रिसर्च क्वेश्चंस। देन देयर इज द पॉपुलेशन। ये जो लेफ्ट साइड पे रिसर्च प्रोसेस का एक कॉलम बना हुआ है, ये मैं 20वीं दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका, आप लोगों को बता चुका, आप लोगों ने इस पे असाइनमेंट दी मुझे वो रिसर्च प्रपोजल वाली। तो प्रोसेस और प्रपोजल ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, ये नहीं भूलनी चाहिए। ये मैंने कहा हुआ है कि आपको इस तरह याद होनी चाहिए जिस तरह आपको 5 नमाज़ों के टाइम याद होते हैं। तो पॉपुलेशन में सैम्पलिंग लिटरेचर व्यू का हिस्सा होती है और डाटा की जो क्वालिटेटिव डाटा की टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं, ये पर्पस स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। देन रिकॉर्डिंग ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, तो लिटरेचर व्यू यानी कोडिंग जब हम करेंगे तो हम लिटरेचर व्यू में उसको बयान कर रहे होंगे और पर्पस स्टेटमेंट में हम उसके थीम्स दे रहे होंगे। देन वैलिडिटी, लायबिलिटी, दैट इज अबाउट इंस्ट्रूमेंट। एथिक्स और वेरिएबल्स जो हैं ये कांस्टेंट हैं। और यहाँ आके वो जो मैंने तीनों बातें की थी, पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और प्रैग्मेटिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म कह गया था, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज ठीक हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म भी कह सकते हो और कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते हो। तो अब देखा ना, इस तरह का टेबल देख के मेरा दिल चाह रहा होता है कि क्विज या असाइनमेंट दूं, लेकिन आपसे वादा कर लिया अब नहीं देनी। तो फिर किसी ना किसी तरह मुझे पूछना तो पड़ेगा कि डिस्क्राइब रिसर्च प्रोसेस, लिटरेचर व्यू एंड पर्पस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ द पैराडाइम। देन यू would respond in the terms of positivism, constructivism and post-positivism. How do you proceed, conceive, mature, execute your research? जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसको आप कैसे कंसीव करते हो, प्रोड्यूस कैसे करते हो, एग्जीक्यूट कैसे करते हो। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो हमें मिलता है पैराडाइम से। लेट मी डिफाइन पैराडाइम। The paradigm is a typical example of pattern of something. पैटर्न हम कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, यानी हमारे
रख रखाव वियरिंग का, घरों के स्टाइल्स का, गाड़ियों के इस्तेमाल का, गाड़ियों के स्टाइल का जो उसके अंदर चेंज आती है, हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल बदल गई हैं चीज़ें, पहले से और तरह की आ गई। तो अच्छा, आप में से कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हैंड रेज जरूर करें और मुझे ये बताएं, कोई एक आप में से, वेदरमैन आप ही बता दो कि ये स्लाइड नजर आ रही है पैराडाइम वाली? जी सर। यस सर, नजर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। a pattern or model, ठीक है, it is the paradigm. A theory or a group of ideas about how something should be done, made or thought about. तो पहली ओल्ड जो OARD उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थी, अब मैरियम और वेबस्टर के अकॉर्डिंग पैराडाइम की डेफिनेशन ये है कि a theory or a group of ideas about how something should be done, made or thought about. This is known as the paradigm. Paradigm has 4 different meanings in literature: worldview, an epistemological stance, as shared beliefs among the community of researchers, as model examples of the researcher. वर्ल्ड व्यू से मुराद ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दुनिया का उस रिसर्च टाइटल के बारे में, और एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस का मतलब ये है कि एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द knowledge and its sources. So what type of sources of knowledge the researcher community deals with, ये भी पैराडाइम स्टेट करती है. As shared beliefs among a community of researchers, a model example of research. तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये मिल के रिसर्च पैराडाइम को डिफाइन करते हैं in terms of literature. Research paradigm consists of assumptions about knowledge and how to acquire it. Assumptions about knowledge mean, जिस तरह मैंने अभी बात की कि epistemology के 6 sources of knowledge हैं. So it is the assumption of the researchers and scientists about the sources of knowledge कि वो 6 तरह के हैं, जिसको मैंने पहले बताया होगा कि revealed knowledge है, intuitive knowledge है, authoritative knowledge है, क्या कहते हैं उसको, inductive और deductive knowledge है, तो likewise फिर वो empirical knowledge है. So these all are the sources of knowledge. So these are also the assumptions about the knowledge of people. These assumptions are shared by the scientific community that uses a particular paradigm. तो अगर आप देखें इसमें से empirical knowledge को आप यूज करेंगे तो वो scientific knowledge होता है, knowledge based on the 5 senses. तो research paradigm कौन सी बन जाएगी? Constructivism हो जाएगी, क्योंकि empiricism जो है उसका बराह रास्त अलग, empiricism itself philosophy of knowledge है, that is that lies under the umbrella of constructivism. Paradigms are pattern of beliefs and practices that regulate inquiry within a discipline by providing lenses, frames and processes through which investigation is accomplished. एक्चुअली पैराडाइम जो है, जो फिलोसफी है, ये एक वो लेंस प्रोवाइड करती है, फ्रेम और प्रोसेस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आपकी रिसर्च में परवान चढ़ना होता है. तो जिस तरह के पैटर्न, बिलीफ पैटर्न होंगे या प्रैक्टिसेस होंगी ऑफ द रेगुलेटेड इंक्वायरी की, वो जो रिसर्च इंक्वायरी आप कर रहे हो वो किस पैटर्न के तहत कर रहे हो, किस कल्चर में, किस बिलीफ में, और कौन सी प्रैक्टिसेस ऑप्ट कर रहे हो, तो इसको एक सर्टेन लेंस में उतारने का नाम पैराडाइम है. और वो पैराडाइम उसकी रेलेवेंट कोई भी हो सकती है, वो पॉजिटिविज्म हो सकती है, कंस्ट्रक्टिविज्म हो सकती है और प्रैग्मेटिज्म हो सकती है. हाँ, रिसर्च पैराडाइम को अगेन हम देखते हैं. पैराडाइम्स में बी डिफाइंड एज द वर्ल्ड व्यू ऑफ बिलीफ सिस्टम्स दैट गाइड रिसर्चर्स. तो ये 2 रेफरेंस है नीचे, इन्होंने इसको यूं कहा है. अब हम देखते हैं फर्स्ट पैराडाइम को, रिसर्च पैराडाइम, जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं. तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीज़ें हो रिसर्च के अंदर, तो उस रिसर्च को हम पॉजिटिविज्म कह सकते हैं या पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम कह सकते हैं. इसके अंदर फाल क्या करता है जी? ट्रू नॉलेज इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ सेंसेस एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट.
सो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है। तो सारी ये चीज़ें कहाँ फॉल करती हैं? एम्पिरिसिज्म में, एम्पिरिकल नॉलेज में। तो मैंने वहाँ बताया था ना कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज को जहाँ जिस तरह का डिस्कस किया जाएगा वैसे ही वो पैराडाइम सेट होगी। तो जो 5-6 सेंसेस की बेस पर बुनियाद करता हुआ नॉलेज हम हासिल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर, तो वो रिसर्च पैराडाइम होगी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्ट बिलीव इन क्वांटिफिकेशन। तो जहाँ रिसर्च पॉजिटिविज्म पैराडाइम यूज हो रही होगी, इसका मतलब है वहाँ आगे चल के ये फिलोसफी हमें बता रही है कि वो रिसर्च की टाइप कौन सी होनी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी है। क्यों? कि थ्रू 5 सेंसेस हमें जो इकट्ठा करना है वो तो नंबर्स में होना है। यानी जब पर्सनली आपने ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, सुन लिया, चख लिया, महसूस कर लिया, तो ये तो ट्रू नंबर्स में आ गया। जब ट्रू नंबर्स में बात आ गई तो ये क्वांटिफिकेशन हो गई। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। तो कितनी मजेदार की बात है कि बात शुरू हो रही है सोर्स ऑफ नॉलेज से। तो रिसर्चर को सोर्स ऑफ नॉलेज की नेचर से पता चल रहा है कि ये कौन सी रिसर्च पैराडाइम है। जब वो ये तय कर लेता है कि ये कौन सी रिसर्च फिलोसफी है, तो उसके लिए आगे रिसर्च की टाइप डिसाइड करना आसान हो जाता है। तो ये बड़ा नेसेसरी है। जब आप मेथोडोलॉजी पे जाते हो तो वहाँ आपको कोई रिसर्च डिज़ाइन देना होता है। तो ये वो रास्ता है जहाँ से आप रिसर्च डिज़ाइन को फिट करते हो फॉर योर रिसर्च। एन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी detached from the objects of research and captures through research instruments real and reality। बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी उसने कि रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से वेरीफाइएबल एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं। यानी आपने कोई एविडेंस इकट्ठा किया, कोई महसूस की, सुनी थ्रू एम्पिरिकल लेंसेज, तो वो वेरीफाई भी हो सकता है। अगर एक बंदा कह रहा है कि इस वक्त जो है वो आग का टेम्परेचर इतना है, तो दूसरा उसको वेरीफाई कर सकता है। तो दिस इज द वेरीफाइएबल। और जब ये वेरीफाई हो गया तो उसका मतलब है रियल चीज सामने आ गई, रियलिटी आ गई। तो जब रियलिटी कैप्चर हो गई तो किसके जरिए होगी? थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर कैसे मेजर होगा? थर्मामीटर से होगा। तो उसको जैद बकर असद जैसे जो लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो सेम ही रिजल्ट देंगे। जब रिजल्ट सेम आ रहे होंगे तो ये हम कहेंगे कि वो जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो रियल है, वो क्या कहते हैं, रिलायबल है। सो इस फिलोसफी में, इस इज़म के अंदर, जिसको हम पॉजिटिविज्म बोल रहे हैं, तो रिसर्च पैराडाइम जो है वो डिसाइड करती है कि जो नॉलेज होगा इसके अंदर वो एम्पिरिकल बेसिस होगा। जब एम्पिरिकल नॉलेज होगा तो रिसर्च मेथड जो यूज़ होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। जब क्वांटिटेटिव होगा तो उसके अंदर जो फैक्ट्स होंगे वो रियल और वेरीफाइएबल होंगे। जब वेरीफाइएबल होंगे तो उनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? रिसर्च पैराडाइम्स पोस्ट पॉजिटिविज्म रिवोल्ट अगेंस्ट आइडियाज ऑफ पॉजिटिविज्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। जो पहले हमने बात की है उसके अगेंस्ट बात जाएगी। यहाँ पे वैल्यू लेडनेस ऑफ इंक्वायरी रिसर्च इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। वो जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो कितने वैल्यूएबल हैं, उनकी अपनी क्या इंटेग्रिटी है, उनका क्या स्टेटस है, उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और कितना वो रिसर्च के मैदान में या उस मैदान में लोग उनको मानते हैं। और वैल्यू के बाद ये थ्योरी पे बेस कर रही होती है। रिसर्च इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी और हाइपोथेसिस ऑफ अ फ्रेमवर्क दैट एन इन्वेस्टिगेटर यूजेस। तो एग्जिस्टिंग थ्योरी या कोई फिनोमेना है उसको टेस्ट करना है, ये उस पर बेस कर रही होती है। और इसमें नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, बनाई जाती है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये तीनों चीज़ें पहले वाली के उलट हो गई हैं। जब यूं होगा तो हम इन डेप्थ जा रहे हैं, अकेला केस है और जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी अपनी इंटेग्रिटी और उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रियल कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। तो सो इट मीन्स दैट सच टाइप ऑफ रिसर्च विल बी, जो इसमें फॉल कर रही है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक हो गया? तो जो पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच है वो पैराडाइम ऑफ रिसर्च है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। नाउ वी गो फॉर रिसर्च पैराडाइम कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की बुनियाद पर जो रिसर्च है वो हम देखते हैं। द मेंटल वर्ल्ड or the experience reality is actively constructed or brought forward and that the observer plays a major role in the theory। तो थ्योरी बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिसर्चर का अपना मेजर रोल है।
कि वो किस तरह से एक्टिवली पार्ट करता है, प्ले करता है, और रियलिटी को किस तरह एक्सपीरियंस करके मेंटल वर्ल्ड, यानी उसकी अपनी मेंटल कॉग्निशन का यहाँ रोल है। कॉग्निटिवली उसकी सोच, थॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर व्यू, they go for to design the theory. Individuals construct their own realities and beliefs to make individual and social meaning out of what they subjectively experience. पिछले वाले में क्या था? ऑब्जेक्टिविटी थी, यहाँ क्या है? सब्जेक्टिविटी है। सो सच टाइप ऑफ पैराडाइम जो है ये मिक्स मेथड रिसर्च के दोनों को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सोर्स ऑफ नॉलेज भी हमें बता रहा है और नेचर ऑफ डाटा भी हमें यहाँ बता रहा है। अब हम कंपैरिजन करते हैं अमंग पैराडाइम्स। ऑन्टोलॉजी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है दैट डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी। अगर पॉजिटिविस्ट अप्रोच होगी तो सिंगल रियलिटी है, एक जुहत को हम पकड़ेंगे, और पॉजिटिविस्ट अप्रोच हमने देखा है कि वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ आते हैं, क्वालिटेटिव की तरफ आते हैं, तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज हो सकती है। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, सो रिलेशनशिप ऑफ नोयर एंड नोन, जो जान रहा है और जो कुछ वो जान रहा है, उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, और अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये अगेन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। और अगर दो वो अलग अलग नहीं किए जा सकते, जानने वाला और जिस चीज को जाना जा रहा है वो एक चीज ही है, एक साथ है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। एक्सियोलॉजी, it means values. The another branch of philosophy that deals with the values is known as the axiology. So according to axiology, inquiry is value free. कोई पॉजिटिविस्ट अप्रोच ये है, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कहती है उसके अकॉर्डिंग, पैराडाइम जो पॉजिटिविज्म वाले हैं वो कहते हैं कि वैल्यू का कोई रोल नहीं है रिसर्च के अंदर, इंक्वायरी के अंदर, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इट इज़ वैल्यू बाउंडेड। इस तरह जनरलाइजेशन, तो जो जनरलाइजेशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिविज्म के पैराडाइम के अकॉर्डिंग जो है ये टाइम और कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कि एक सर्टन टाइम में और ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, ऐसी बात नहीं है, जनरलाइज फॉर ऑल। बट इसके उलट है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि ये दोनों बाउंड हैं इसके साथ, टाइम के भी और कॉन्टेक्स्ट के भी। कैजुअल लिंकेजेस, देयर आर रियल काजेज, सॉरी कैजुअल नहीं है, काजल लिंकेजेस, काज एंड इफेक्ट से है। द रियल काजेस दैट आर टेम्पोरली प्रेसिडेंट टू द स्टिमुलस विद इफेक्ट्स, तो काज एंड इफेक्ट के रीजन से कोई चीज़ बनती है और उसको हम डिस्कस करते हैं, तो ये पॉजिटिव अप्रोच में करते हैं, पैराडाइम है पॉजिटिविज्म। और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पैराडाइम है उसमें ये मुमकिन नहीं है, काज एंड इफेक्ट का कोई रोल नहीं, इसको अलग अलग से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इस काज की बुनियाद पर ये रिएक्ट हुआ है। लॉजिक एंड मेथड में अगर हम बात करें तो लॉजिकल जो है रीजनिंग वो पॉजिटिविज्म पैराडाइम की है, डिडक्टिव है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म की है जो इंडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब डिड्यूस करना, अवेलेबल रिजल्ट्स में से कोई एक अपने लिए सूटेबल निकालना। इंडक्टिव है आपने इंफॉर्मेशन एट लार्ज इकट्ठी की और उनके लिए आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो। मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव है। अब समझ आ गई है आप लोगों को, एक एक इसके कंपोनेंट को, एक एक नहज को हमने डिस्कस किया है पैराडाइम्स के, ताकि हम देख सकें कि इनकी क्या चीज़ें फाल करती हैं। तो रिसर्च पैराडाइम, प्रैग्मेटिज्म जो थर्ड है, दैट इज अ मिक्स मेथड। मैंने कहा था प्रैग्मेटिज्म दोनों को मिला दें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और पोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट को या पॉजिटिविस्ट को, दोनों को मिलाएं तो जो बनेगी रिसर्च ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी। और ये प्रैग्मेटिज्म, इसको हम कहते हैं मिक्स मेथड रिसर्च। तो यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड को इकट्ठा यूज़ करते हैं, और इसमें चॉइसेस ही चॉइसेस होती हैं क्योंकि दोनों को आप ले रहे हैं। तो डाकोटोमी बिटवीन द पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिविज्म होती है। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड रिसर्च फिलोसफी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कोई और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और ये जो है ये ख़त्म होने वाला है, सेशन 1.5 मिनट रह गया। अगर आपने कोई बात करनी, कहनी, पूछनी है तो यू आर वेलकम, योर माइक्स आर ऑन, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क समथिंग इफ यू वांटेड टू आस्क। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वफा बात कर रही हूँ।
जी सर बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है ये जब हमने कंपैरिजन अमंग पैराडाइम्स में पढ़ा ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी में, सर उसमें आपने एक हमें बात बताई है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो उसमें नोअर एंड नोन आर इनसेपरेबल। हाँ, तो सर ये कैसे कि दोनों एक ही होंगे? एक नहीं, यानी जानने एक वाला एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। जो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ना ये इसकी क्वालिटेटिव की, यानी वो पार्टिसिपेटिव है, उसके साथ अटैच्ड है, उसको डीपली माइन्यूट कर रहा है। लेकिन पॉजिटिविस्ट अप्रोच में तो आप क्वेश्चनर किसी को दे देते हैं, फिल करवा लाते हैं, आपको पता भी नहीं होता जवाब देने वाला कौन था, कहाँ था, उसके क्या थे, फीचर्स क्या थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में ऐसा नहीं होता, उसको वो इन डिटेल जान रहा होता है, यानी जिसको इंटरव्यू ले रहे हैं सामने बिठा के, तो वो उसके बारे में मुकम्मल आगाही उसको होती है। जी, और